Hello, very good morning. We are reading the chapter 8, A Short Monsoon Diary. क्लास 8 के आज की इस वीडियो में हम ए शॉर्ट मानसून डायरी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। August 2nd. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. There has been no storm, no thunder, just the steady swish of a tropical downpour. It helps me to lie awake. At the same time, it doesn't keep me from sleeping. It is a good sound to read by. The rain outside, the quiet within, and although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain. तो 2 अगस्त की डायरी में यहाँ पर जो राइटर वो कहता है कि सारी रात जो नालीदार टिन की छत थी वो शोर करती दिखाई दे रही थी। कोई तूफान नहीं आया, कोई बादल नहीं गरजे, बस केवल उष्णकटिबंधीय जो मूसलाधार वर्षा थी वो ही लगातार गिर रही थी। पढ़ने में एक सुंदर आवाज़ है। बाहर वर्षा, भीतर शांति। यद्यपि टिन की जो छत थी वो बेहिसाब से पानी उसमें से झरता है, फिर भी वर्षा का स्पर्श न होने का अनुभव करते हुए भी वर्षा से स्पर्श का अनुभव वो करता है। 3 अगस्त. The rain stops. The clouds begin to break up. The sun strikes the hill on my left. A woman is chopping up sticks. I hear the tinkle of cobwebs. In the oak tree, a crow shakes the raindrops from his feathers and caws disconsolately. Water drops from a leaking drain pipe, and suddenly, clean and pure, the song of the whistling thrush emerges like a dark, sweet secret from the depths of the ravine. फिर 3 अगस्त की वो डायरी में बताता है कि वर्षा रुक जाती है, बादल छटने लग जाते हैं, सूर्य की धूप है वो मेरे बाईं तरफ पहाड़ी से टकराती है। एक स्त्री लकड़ी के टुकड़े कर रही होती है। मैं गायों की घंटियां सुनता हूँ। आग के पेड़ पर एक कौवा हिलकर अपने पंखों से वर्षा की जो बूंद होती है उनको झटकाता है और दुखी होकर काँव काँव करता है। रिश्ते नाली के जो पाइप है उसमें से पानी बूंद बूंद टपकता है और मधुर रस की तरह घाटी की गहराइयों से वो बाहर उस सारिका नाम के पक्षी का आता है। 12 अगस्त को endless rain and a permanent mist. We haven't seen the sun for 8 or 9 days. Everything damp and soggy, nowhere to go. Pace the room, look out of the window at few waving umbrellas. At least it is not cold. तो 12 अगस्त को ऐसा लगता है कि अब अंतहीन वर्षा हो चुकी है और स्थायी कोहरा हो गया है। हमने 8-9 दिन से सूर्य को भी नहीं देखा है। हर वस्तु गीली और नमीयुक्त हो गई है। कहीं नहीं जाना, कमरे में चहलकदमी करो, खिड़की से ही केवल बाहर की कुछ हलती हुई जो छतें हैं उनको देखो। कम से कम यह ठंडी वर्षा तो नहीं है। पहाड़ियों की जो घाटियाँ वो हरी भरी हो गई है क्योंकि मानसून के अंत में खिलने वाला फूल जैसे जंगली गुलमेहंदी का, डहलिया का, बेगोनिया का और ज़मीनी जो ऑर्किड दिखते हैं वो सब अच्छे लगते हैं। इसके बाद 12 अगस्त के बाद 13 अगस्त को द hillside, the lush late monsoon flowers begin to appear, ground orchards. 31 अगस्त को it is the last day of August and the lush monsoon growth has reached its peak. The seeds of the cobra
lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. In a few days, the ferns will be start turning yellow, but right now they are still firm, green and upright. Ground orchids, mauve, lady's sleeper, and the white butterfly orchids put on fashion display on the grassy slopes of Landor, wild dahlias, red, yellow, and magenta, rear their heads from the rocky surfaces where they have taken hold. Snakes and rodents flooded out of their holes, and the burrows take shelter in roofs, attics, and godos. A shrew, weak of eyesight, blunders about the rooms, much to the amusement of children. Don't kill it, admonishes their grandmother. Chuchundaras are lucky. They bring money. And sure enough, I receive a check in the mail. Not a very large one, but welcome all the same. जो लास्ट डे होता है अगस्त का, उस दिन वो अंतिम दिन है और मानसून भी क्या है, हरी भरी वृद्धि मानसून की जो थी वो अपने चरम शिखर पर है। नागफनी के बीज हैं वो लाल हो चुके हैं और ये संकेत कर रहे हैं कि अब वर्षा का अंत भी आने वाला है। कुछ दिनों में जो फर्न थे वो पीले पड़ने लगेंगे, किंतु अभी से वो ठोस हरे और बिल्कुल सीधे खड़े हैं। जो ज़मीनी ऑर्किड है वो लेडी स्लीपर के बैंगनी फूल और सफ़ेद तितली शतावरी के पौधे घास वाले ढलानों पर एक सुंदर प्रदर्शन कर रहे हैं। लाल पीले गहरे गुलाबी रंग की जो जंगली डहेलिया के फूल चट्टानों की दरारों में अपने सिर बाहर उठाते हैं और उन्होंने पकड़ भी बना ली है। सांपों और चूहों ने अपने बिलों और मांदों में पानी भर जाने से छतों, अटारी और गोदानों में शरण ले लिए। एक कमज़ोर नज़र वाली जो छछुंदर होती है बच्चों को मनोरंजन करने के लिए गलती से कमरे में घूम रही है। उनकी जो दाढ़ी झड़कती है, इसे मत मारो, छछुंदर भाग्यशाली होती है, ये धन लाती है। और निश्चित ही मुझे डाक से एक चेक प्राप्त हुआ, कोई बहुत बड़ा नहीं लेकिन फिर भी स्वागत है। फिर अक्टूबर 3rd, we have gone straight from the monsoon into winter rain, snow at higher altitudes. After an evening hailstorm, the sky and hills are suffused with a beautiful golden light. January 26th, winter rains in the hills. In the hushed silence of the house, when I am quite alone and my friend who was here has gone, it is very lonely, very quiet, as sit in a liquid silence, a silence within, surrounded by the rime of rain, the steady drift of water on leaves, on lemons, on roofs, dumping on drenched hills and window panes, while the mist holds the house in a dark caress. As I pause near a window, the rain stops and starts again, and the trees no longer green but grey means me with their loneliness. 26 जनवरी को कि पहाड़ियों में अब वो सर्दी का वर्ष है, विंटर रेन्स इन। घर के जो खामोश सन्नाटा उसमें जब मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मेरा मित्र यहाँ आ चुका है, बहुत एकांत, बहुत शांति है, जबकि मैं स्पष्ट बिल्कुल अकेला सन्नाटे में बैठा हूँ। एक सन्नाटा अंदर है, वर्षा की लय ताल से मैं घिरा हुआ हूँ। पत्तियों, नींबुओं, छत पर एक लगातार भाव है जो भीगे हुए डेहली और खिड़की के शीशों पर शोर करता रहता है। खिड़की के पास यदि मैं रुकता हूँ, वर्षा ठहर जाती है, फिर शुरू हो जाती है। पेड़ अब और हरे नहीं बल्कि सलेटी हुए हैं, वे अपने अकेलेपन से मुझे डराते हैं।
In last 23rd March में late March end of winter the blackest cloud I have seen squatted over Missouri, and then it hailed marvels for half an hour. Nothing like a hailstorm to clear the sky. Even as I write, I see a rainbow forming. 23 मार्च का अंत में सर्दी का भी अंत, और मसूरी के ऊपर मैंने अब तक का जो सबसे काला बादल मंडराता देखा। फिर यह आधे घंटे तक ओलावृष्टि करता रहा। आकाश साफ करने के लिए ओलावृष्टि जैसा कुछ नहीं। लिखते समय भी मैं एक इंद्रधनुष बनते हुए मैं देखता हूँ। इस प्रकार ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित मानसून डायरी चैप्टर इज कंप्लीट होता है। आपको होमवर्क में कॉम्प्रिहेंशन चेक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन ये करने हैं, और वर्किंग विद द टेक्स्ट ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ भी आपको करने हैं। और नेक्स्ट लुक एट द सेंटेंस बिलो। ये आपको केवल रीडिंग करनी है, इनकी होमवर्क में नहीं करना है। बस इतना ही काम आपको करना है होमवर्क में। ओके।